जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, ऐसे ख़ानदान के साथ उनका तल्लक है कि सिर्फ इस अदारे के लिए उनकी खिदमात नहीं है, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। चाहे जो भी इशू हुए, इस ख़ानदान ने और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और इसी ख़ानदान के एक चश्मो चिराग मोरी मिराज जनाब जाहिद हुसैन भुट्टो साहब से है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आपके मेहमान जब स्टेज पे तशरीफ लाएं तो अपने मेहमान का खड़े होकर भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें, ताकि मुद्दतों याद रहे जाहिद हुसैन भुट्टो साहब को कि मैं नशपा की सरजमीन पे गया था। साध हमेशा साध होंदन, साध हमेशा साध होंदन ते चोर हमेशा चोर होंदन। साध हमेशा साध होंदन ते चोर हमेशा चोर होंदन। और लख गिरजा हार सिंगार करन पर मोर हमेशा मोर होंदन। मोहतरम जनाब जाहिद हुसैन भुट्टो साहब। भुट्टो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती काबिल एहतराम नशपा गैस फील्ड के गैरतमंद वर्कर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक पॉलिटिकल वर्कर बहादुर साथी अब्दुल्ला नोतकानी साहब और मेरे साथ आए हुए मेरे ओहदेदार साहिबान और आपकी पड़ोस की फील्ड का जमील अख्तर साहब, उसके अलावा जिन दोस्तों के नाम आते हैं नहीं आते हैं, आपको मैं सलाम पेश करता हूं। मेरे अजीज साथियों, मेरे दोस्तों, मैंने सिंध और बलूचिस्तान का कंप्लीट दौरे के बाद मैंने महसूस किया कि आज इनका पैगाम, सिंध के मजदूरों का पैगाम, बलूचिस्तान के मजदूरों का पैगाम, कल मैं कोट सारंग में था, शनवारी साहब चकवाल की तमाम फील्डें करके आया, पंजाब के तमाम फील्डों का पैगाम नशपा के दोस्तों को बताऊं कि एक तरफ वो टीम है जो हुक्मरानों के साथ आंखों में आंखें मिला के बात करती थी और अपने कौल और फेल में तजाद नहीं होता था। दूसरी तरफ वो टीम है जिसका जिक्र शनवारी साहब ने किया, अब्दुल्ला नोतकानी साहब ने किया, आमिर अब्बासी साहब ने किया और मैं किस किस के नाम लूं, तमाम वर्करों ने लिया। आज का ये खामोश इनकलाब, आज का ये 2023 का रेफरेंडम बता रहा है तो इंशाअल्लाह अज़ीम जब हम लोगों ने इसकी कैंपेन स्टार्ट की थी, जब मैं अपने गांव से दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन डेरा बुगटी गया, साहब मौसूफ की नींद खराब हो गई। उसने भी महसूस किया कि इस दवा शायद जुगाड़ न चले।
اس دفعہ شاید کوئی میرے ساتھ نہ ملے، اس دفعہ شاید NRC بھی میری مدد نہ کرے، اس دفعہ شاید مینجمنٹ بھی اس طرح مجھے سپورٹ نہ کرے، تو یہ بھی بھاگ کے میرے پیچھے ادھر گھوٹکی آیا، گھوٹکی سے ہوتا ہوا حیدرآباد آیا، اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے، مگر میں اکیلا ڈرائیور، اکیلا بندہ، آج بھی آپ دیکھیں میں جب واپس جاؤں گا ادھر سے 2 لوکل لوگ ہوں گے جنہوں کو میں نے ساتھ لیا صرف راستہ دکھانے کے لیے، دوسری طرف 2 سرکاری ویگو، بما جنرل سیکٹری اور تالیاں بجانے والے لوگ بھی 3 گاڑیوں میں لے آیا، 3 گاڑیوں میں، شاید اس کا طریقے واردات پرانا ہے مگر آج کا مزدور اس کو سمجھ گیا۔ آپ میرے پروگرام بھی اس کے پروگرام بھی دیکھ لیں، کیونکہ میں ادھر سے نکلوں گا، یہ جو موبائل ہے یہ آپ کو گواہی دے گا، پورے ملک کے ورکر کو بتائے گا کتنے بندے اور اس نے کیا بولا۔ میں ان کی چیزوں کو چیک کرتا رہا، یہ تالیاں بجانے والے، یہ خریدے ہوئے لوگ، یہ بے ضمیر لوگ، اور احسان فراموش CBA کا صدر جس نے سب سے پہلا حملہ اپنے موثروں پہ کیا، ادھر ایک ہوتا تھا دکنی میں حافظ فاروق مغل، اس کو اس نے ڈسا یا نہ ڈسا، یہ 7 اسٹار کے دوست، اس کے ساتھ اس نے موسن کشی کی نہیں کی، اس کے ساتھ سندھ سے تعلق رکھنے والا حکیم کھوسو صاحب جس نے اس کو کہا کہ راجہ صاحب جس طرح آپ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں مزدوروں کا معاہدہ اس طرح نہیں ہوتا، اس نے اختلاف رکھ کے 2 سال پہلے میرے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اس بے ضمیر انسان احسان فراموش احسان نے پھر طریقے واردات چینج کرتے ہوئے ان لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ بھائی میرے پاس اتنی سیٹیں ہیں، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کوئی ادھر ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ چھوڑ رہا ہے، سارے ریٹائر ان کے ساتھ تھے۔ کل جو وہ ریٹائر میرے ساتھ تھا، میں پنجاب کی فیلڈوں میں گیا، خدائی کہتا ہوں گاڑی میری چیک کر رہے تھے کہ اندر نہیں جانا چاہیے، اس کے ساتھ جاتا ہے سب حلال ہے، اگر میرے ساتھ ملک اختر جاتا ہے یا گل صاحب جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے حرام ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، انہوں نے 22 کی باڈی الیکشن میں 400 سے 500 ووٹ دیے نہیں دیے؟ اس ٹائم ان کا ووٹ صحیح تھا، جب آج میرے ساتھ ہیں تو رات پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی پوسٹیں لگاتے ہیں اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارکیف یہ کراچی سے چلا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہوں، ادھر سے جہاں جہاں یہ جس فیلڈ میں گیا، اس احسان فراموش آدمی نے وہی پرانی باتیں، وہی پرانے جھوٹ، وہی پرانے لالی پاپ کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیا۔ اس کے پاس کارکردگی نہیں ہے، اگر کارکردگی ہوتی تو یہ 4-5 ہزار لوگ تھرڈ پارٹی سے کنورٹ ہو کے OGDC کے امپلائی بن سکتے ہیں کہ یہاں آپ کے کک بیرر 15, 20, 30, 40 لوگ ہیں، یہ 14,000 روپے گزارا کرتے۔ اگر اس میں ابھی بھی تھوڑا خیال ہے کسی ورکر کا، میں کہتا ہوں ایک بندے کا ووٹ کرائے، ایک کنورٹ کرا کے دکھائے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ سیاست اس کے بس کی بات نہیں ہے، OGDC کا پولیٹیکل ورکر اس کو سمجھ چکا، اس لیے جب 7,000 ووٹ لیے اس کے بعد جو ایگریمنٹ کیا وہ ایگریمنٹ اس قابل تھا جو ایگریمنٹوں میں ہوتا تھا۔ اس کو پھر ایک دفعہ مزدوروں نے 5200 ووٹ دیے، 5200 کے بعد اس کا جو رسپانس تھا، رزلٹ تھا، سوائے ان 2 کلاسوں کے، 3 کلاسوں کے جو اس نے اپنی ذاتی کلاس کرائی، اپنے آپ کو کیپنگ سے نکالنے کے لیے اپ گریڈ کیا، پتہ نہیں کو 5-6 گریڈ میں تھا، 14 گریڈ میں چلا گیا۔ پھر اس نے ایک کلاس اپنے جنرل سیکرٹری کے لیے کی، کیونکہ ان کو پتا تھا ہارنے کے بعد ہمارا گزارا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے پہ نہیں ہوتا، ہارنے کے بعد ان کا گزارا یہ جو 5% پڑے ہیں 4 سال سے
जिस गरीबों का हक है उनको देने से कासिर है और उनका इंटरेस्ट ये खुद खा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दो सूबों में, सिंध में और बलूचिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं है और इसकी इलेक्शन सिर्फ ये नजर आ रही है सोशल मीडिया पे। इसने किराए के लोग खरीदे हुए हैं और आपको गलत गाइड कर रहे हैं। मैं आप नशफा के और स्पेशल इस धरती के केपी के मजदूरों को अपील कर रहा हूं कि अगर आपने एक दफा इसको फिर मौका दिया तो ये अपने पांव पे कोलाड़ी होगी। क्योंकि जब हम लोगों ने इनको यूनियन हवाले की थी, बदकिस्मती से ये शॉर्टकट के जरिए आया। खुदा की कसम उस वक्त की यूनियन हुक्मरानों से आंखों में आंखें मिला के बात करती थी। आपको याद होगा 2010 में आसिफ जरदारी साहब की एनर्जी गवर्नमेंट ने बीबी शहीद की शहादत के बाद एक ऐलान किया, कादरपुर बेचो। इधर से आपकी यूनियन ने और आपके भाई ने आपकी ताकत से और सिंध के गरीब मिस्कीन मजदूरों की ताकत से ऐलान किया कि कादरपुर नहीं बिकेगी। आप गवाह हैं कि कादरपुर बिकी। फिर इसने, आपने देखा 2013 में आज का फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने 12% या 13% शेयर्स के मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए एक रोड शो कराया दुबई में, दूसरा लंदन में। जिस दिन उसका अनाउंसमेंट हुआ ऑफिशियल प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, मिनिस्टर था जुबैर उमर साहब, ठीक उसी दिन चौधरी साहब आया हमारे पास, हमारी टीम के पास, हमारे दोस्तों के पास। उसने कहा कि मुझे किसी अफसर ने और कुछ हमारे कुलीगों ने, कुछ यूनियन लीडर्स ने हमें धमकी दी है कि हम ये करेंगे, आपको पुलिस से पकड़ाएंगे, आपको बच्चों को तंग करेंगे अगर आपने रेजिस्टेंस की। तो मैंने उनको कहा कि चौधरी साहब आओ और ये ओजीडीसी का नुकसान पाकिस्तानी कौम को बताओ। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हम लोगों ने कराची में। कराची मीडिया का हब है। कराची वो सिटी है जिसकी एक चीख को पूरी दुनिया सुनती है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आने वाले रोड शो से पहले, ओजीडीसी को बेचने की तैयारी से पहले अगर आपने ये ऐलान वापस नहीं लिया तो हम 25 तारीख को सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद करेंगे। आपने देखा को सिंध पंजाब के लोगों ने और पूरे मुल्क के ओजीडीसी वर्कर ने इकट्ठा होके इसहाक डार को मजबूर किया। आधे घंटे का हमारा रोड पे लगता, खुलते खुलते उसको 26 घंटे गुजर गए। ये मोटरवे नहीं होता था पहले। ऐसी यूनियन हम इसको दे के गए। इसने वो अचर किया है कि एक जीएम इसको बोले कि जाओ वो मिनिस्ट्री दे। अगर आपने मेरे और मेरी टीम के ऊपर एतमाद किया, इज्जत दी, तो मैं आपको दावा से कह रहा हूं, इस जनरल इलेक्शन से पहले 2 से 3 महीने के अंदर एक अच्छा एग्रीमेंट नहीं देंगे। नहीं दिया तो खुदा की कसम मुझे भी हक नहीं है कोई सियासत करूं और ओजीडीसी के लोगों के साथ धोखा करूं। आपको पता है ये जो सेक्ट एम्प्लॉइज के लिए कमेटी बनी कादर मंदोखेल साहब की, बिला शक ओजीडीसी इस पे ऊपर अमल न करे, मगर उन फेक्ट एम्प्लॉइज जिनको इसने 200-250 है या कोई 100 के करीब है, उनको पूरा पीरियड इस्तेमाल करता रहा अपोजिशन का। जब उनकी बारी आई ईएनडी रूल की खिलाफ की, उस पर अमल दरामद हुआ। जो भी कमेटी बनती है उसका ये पीछा क्यों नहीं करता? तो मैंने उनका केस उधर भेजा। उन तमाम इदारों को मंदोखेल ने लेटर लिखा है कि आइंदा भर्ती बंद करो, जब तक ये थर्ड पार्टी का या ये कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं तब तक खात्मा ना हो। तो अजीज साथियों, यही चीजें आपके गोशगुजार करनी थी। अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर आपके पास इस पर्ची के अलावा कोई हथियार नहीं है, अगर मैं भी कोई ऐसी हरकत करूं या मैं भी कोई ऐसी गलत बयानी करूं
मगर 18 मई का दिन याद रखना, अगर 18 मई को आपने अपने बच्चों की रोजी रोटी के साथ, मेरे साथ तो धोखा होगा मगर बच्चों की रोजी रोटी के साथ धोखा किया, तो फिर आपसे बेहतर कोई एक अननोन पर्सन होगा जिसका ओजीडीसी से कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ हम कहते हैं ओजीडीसी हमारी माँ है, दूसरी तरफ ओजीडीसी के सौदा करने वाले लोग आपको 4 साल से मुसल्लत है। मैं इनका पीछा 18 दिसंबर 2018 से कर रहा हूं। हमारे कौल और फेल में तजाद नहीं है। मैं चंदा गया, एक रगीन 6 का शनिवारी साहब ने जिक्र किया, वो डंप हो रही है। ठीक तीन दिन बाद हमारी टीम के जाने के बाद मलिक इस्माइल साहब पहुंच गया उधर, इसको ले आया, अभी रिटायर है, कल उधर जलसा भी कर रहा था, कोट सारंग में सुना है। ओजीडीसी वाले कानून कैटेगरियां मेरे लिए और है, शनवारी साहब के लिए और मलिक इस्माइल के लिए और। मैं इस स्टेट से इंतजामा की भी वार्निंग दे रहा हूं कि हमारी इस मजदूरों की इलेक्शन में साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। अगर इन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं किया तो उनके साथ भी हिसाब किताब होगा। अब वो हालात नहीं है जो किसी को आप धोखा दें या गलत बयानी करें। मैं रिक का जिक्र इसलिए कह रहा था, इसने खुद उधर जाके 3 दिन बाद ऐलान किया कि आइंदा इसका कोई लोड गया तो वो टेला मेरे लाश पे गुजरेगा। उसके बाद ये 2 डंप हुई हैं, एक N1, इसका उधर नायब सदर रहता था, एक अल्फाज खुदा की कसम नहीं बोला। उसके 26 बंदे कोटद्दू में बैठे हैं जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, आरसी ऑफिस वाली फैसिलिटी ले रहे हैं, और बाकी बंदों को इन्होंने डंप लीव पे भेजा हुआ है। कभी आपने सुना डंप लीव भी होती है? किधर गई ये जो दावा करता था कि ओजीडीसी मेरी माँ है, ये अपनी माँ के साथ धोखा कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मैं आपसे फिर एक दफा और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शायद इसके बाद जलसा भी ना हो, और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि जिस फील्ड में आपके दोस्त हैं, सीटों के पुजारियों के लिए रिक्वेस्ट नहीं है, सारे लीडर बिक जाएं। इसने हमारे साथ सियासत करने की कोशिश की, एक ऐलान कराया 7 का बाद, आज इसका बलूचिस्तान जाना भी खुदा की कसम बंद है। जीत भी गया, किसी हेल्पर की इसने हेल्पर की ट्रांसफर कराई ना, इसका बलूचिस्तान जाना बंद हो जाएगा। तो ये सियासत का गुर भी नहीं सीखा, हमेशा इसने फिराट से बैकडोर से सियासत की है। ये बड़ी बातें कर रहा था कोट सारंग में, हम लोगों ने उस धरती पे कोट सारंग का जवाब दिया। एक कादरपुर में गया, 3 बंदों ने इसको जलील ख्वार किया। ये उच्च में गया, लोगों ने इसको ये किया, वो भागा, और हम भागते हुए क्या पीछा इस तरह कर रहे हैं जिस तरह पुलिस एक चोर की करती है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।